Hello dear students. So we were studying types of carbon compounds, right? Under that we studied the carbon compounds are of two types. Let us have a short revision. Hydrocarbon compounds is the first type, and the second, derivatives of hydrocarbon compound. So students, we have completed studying the topic or the type of carbon compound, that is hydrocarbon compound. We know that hydrocarbon compounds are the carbon compounds which are made up of carbon and hydrogen. They are again of two types on the basis of number of bonds and on the basis of structure of chain. Right students? Did we complete this in the previous lecture? On the basis of number of bonds, they are of two types. Yes, saturated hydrocarbon compounds and unsaturated hydrocarbon compounds. Saturated means alkane, having single bond between carbon atoms. Unsaturated means alkene, having double bond between any two carbon atoms, or alkyne, having triple bond between any two carbon atoms. Right? On the basis of structure of chain, they are again of two types. Aliphatic hydrocarbon compounds and aromatic hydrocarbon compounds. Right students? Aliphatic means having straight chain, a chain or a branched chain. Straight chain are called normal hydrocarbon compounds. Branched chain are again of two types, iso hydrocarbon compound and neo. Now we have studied this in detail, so I will not repeat that. Whereas aromatic hydrocarbon compounds having cyclic structure. Okay, they have straight chain structure or a branched chain structure, whereas aromatic have cyclic structure, and they produce a characteristic aroma, odor, hence they are called as aromatic hydrocarbon compounds. Okay, so I hope you understood the hydrocarbon compounds on the basis of number of bond and on the basis of the structure. Now students, from today onwards we will study derivatives of hydrocarbon compound. बहुत पहले explain किया था तो शायद भूल गए होंगे, तो let me explain you. From the hydrocarbon compound, when one or more hydrogens are replaced, then they are called as derivatives of hydrocarbon compound. मैंने एग्जाम्पल दिया था, सपोज इथेन. चलो, कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन? इथेन वेरी सिंपल. पेरेंट नेम इज इथ. इथ मीन्स टू कार्बन, 1 2. एन मीन्स सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन, दिखा दिया. बट वन कार्बन कैन फॉर्म 4 bonds because of tetravalency. So it is surrounded with one bond already, 2 3 4, which will be formed with hydrogen. When we are talking about hydrocarbon bond, ethane, that is alkane, are hydrocarbon compounds. Here also this carbon is surrounded with one bond, right? So 2 3 4. Okay, the formula of this compound is C2H6. right students? ethane हमने ये भी 10th कार्बन तक स्टडी किया है, राइट? 1 कार्बन मिथ, 2 कार्बन इथ, 3 प्रो, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नोन and 10 डेक. सो डेकेन, डेकीन, डेकाइन, नोनेन, नोनिन, नोनाइन, राइट? ये सब हमने प्रैक्टिस किया है. नाउ this is a hydrocarbon compound that is made up of only hydrogen and made up of only carbon and hydrogen. But I was telling, when one or more hydrogen atoms are replaced, suppose यहाँ पे ये hydrogen atom replace हो गया by some other atom or group of atoms, when replaces the hydrogen from the hydrocarbon compound. चलो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह ले ली क्लोरीन ने. किसने ले ली प्लेस? क्लोरीन ने. अब ये हो गया क्लोरो इथेन, मतलब इथेन में क्लोरीन की एंट्री हो गई. समझ में आया?
वाई इथेन, एक हाइड्रोजन तो कम हो गया, इथ बिकॉज 2 कार्बन, एन बिकॉज बिटवीन देयर सिंगल बॉन्ड, और उसमें हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ने ले ली तो इट विल बिकम क्लोरोइथेन। तो स्टूडेंट्स नाउ यू टेल मी, ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हो गया है क्या? भी हाइड्रोकार्बन मीन्स मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, नहीं, अब इसमें एक दूसरा आइटम भी आ गया, इसीलिए ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। समझ में आया? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन वेयर वन और मोर हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ वन और मोर, चलो फॉर एग्जाम्पल यहां से एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया एंड उसकी प्लेस ले ली, चलो एक और क्लोरीन ने सपोज प्लेस ले ली, तो अब ये हो जाएगा डाइक्लोरोइथेन, क्योंकि इथेन में 2 क्लोरीन आ गए। सो दीज आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। सो व्हेनेवर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स आर फॉर्म, व्हाट वी नीड? वी नीड एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। अब मैंने एटम का एग्जाम्पल दिया, क्लोरीन एक एटम है, ग्रुप ऑफ एटम का एग्जाम्पल देती हूँ। चलो ये इथेन ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ही था, ओके, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ही था। नाउ वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस, चलो ये वाला हाइड्रोजन वापस रिप्लेस हो गया, ये वैसे ही है, ओके, विथ अ ग्रुप ऑफ एटम दैट इज OH। टेल मी, ऑक्सीजन एक एटम है, हाइड्रोजन एक एटम है, ग्रुप में आके इन्होंने डिस्प्लेस कर दिया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, राइट। अब इसका नाम है OH मीन्स अल्कोहल, तो अब इसका नाम है इथेनॉल, ऑल मीन्स अल्कोहल, इथेनॉल, समझे? तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। अब ये नाम कैसे लिखने हैं, कैसे याद रखने हैं, वही मैं आज पढ़ाने वाली हूँ। सो हियर first of all let me tell you about this atoms or group of atoms who are replacing the hydrogens from the hydrocarbon compounds to form derivative of hydrocarbon compound are called as functional groups. What these atoms or group of atoms who performs the function of replacing the hydrogen are called as functional groups. So students, आज हमको यही टॉपिक पढ़ना है एंड सिर्फ आज नहीं, अगले लेक्चर में भी हम यही टॉपिक पढ़ेंगे. देयर आर मेनी फंक्शनल ग्रुप्स, वी विल स्टडी देम स्टेप बाय स्टेप. ओके, so what are functional groups or how you will define functional group? Atom or group of atom which replaces one or more hydrogens from the hydrocarbon compounds to form a derivative of hydrocarbon compound with a characteristic feature. जैसे कि ये पहले इथेन था, इथेन का क्या बन गया? इथेनॉल, मतलब इथेन दैट इज अल्केन अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया. आर यू गेटिंग? क्लोरीन जो मैंने पहले इसके पहले दिखाया था दैट इज क्लोरोइथेन. इथेन क्लोरोइथेन मतलब हेलोजन फैमिली का बन गया. क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हमने पढ़ा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर में, group number 17. Those elements are called as halogens, right students, if you remember. So atom or group of atoms present in a molecule giving it a characteristic feature is called as functional group. Should we start studying that? अच्छे से ध्यान दो students. Here I'm going to make one chart. वो chart अगर learn किया then functional groups, like it's very easy for you all to understand, remember and answer in the exam. तो functional group means what? Atom or group of atom. तो यहाँ पे मैं पहले लिख रही हूँ which is the heteroatom present in that functional group. Okay, then we will write for example थोड़ा सा प्लेस कम पड़ेगा. ओके, फंक्शनल ग्रुप. अंडर दैट वी विल मेक कॉलम्स. नेम ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप, इसका हमको नेम लिखना है. देन वी विल राइट इट्स स्ट्रक्चरल formula, and then we will write its condensed formula. Maybe I will need to increase this place.
we will write its common name, and here we will write its IUPAC name. अब common name means common name, but IUPAC name means what? Scientific name of that chemical compound. जैसे लिविंग थिंग्स को बायोलॉजिकली साइंटिफिक नेम होता है, जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, वैसे इथाइल क्लोराइड का साइंटिफिक नेम है क्लोरोइथेन. So scientific names of the chemical compound which are given according to IUPAC. What is IUPAC or IUPAC? International Union of Pure and Applied Chemistry. International Union of Pure and Applied Chemistry means from all over the world, all the chemists. Chemist means the scientists of chemistry. Okay, they have formed an organization according to which there are some rules and regulations to name the chemical compounds in a scientific way. Okay, now there are many functional groups we are going to study here, and वो functional group किसी हाइड्रोकार्बन में अगर प्रेजेंट हो गया तो हो जाता है डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन कंपाउंड. फिर उसका कॉमन नेम क्या होगा और उसका आईयूपैक नेम क्या होगा वो आज हम पढ़ेंगे. स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन विल डू इट. तो सबसे पहले जो हेटेरो एटम है यहाँ पे वो है हैलोजन. Students, group 17 of periodic classification, modern periodic table, it has the halogens. So here the halogens are chlorine, bromine, iodine. Okay, I will take these three halogens here. Now, ये functional group का नाम क्या है? Halogen only. Understood everyone? Or simply we call it as halo. Okay, so what is the name of this functional group? Halo. Structural formula will be here R-X. Now let me tell you what is R. हाँ, सबसे पहले R क्या है? When I will send you notes, students, उसमें ये सब mentioned है. Okay, अभी सिर्फ ध्यान दो. And no problem at all. At least ये वाला topic जैसे जैसे मैं वीडियो में पढ़ा रही हूँ तुम खुद के notes बनाओ from the video. I am going to send you only, but इससे बनाओ. R means alkyl group. अब स्टूडेंट्स हमको अल्केन पता है, अल्कीन पता है और अल्काइन पता है. ये अल्काइल ग्रुप क्या है? इट इज नथिंग बट अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम किया. ओके, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन? अल्केन CnH2n प्लस 2, राइट? जैसे कि CH4 मीथेन. अल्केन ये फॉर्मूला के हिसाब से C मतलब 1 है यहाँ पे, कार्बन 1, सो 2 into 1 2 plus 2 4, राइट? बट जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया, +2 की जगह +1, मतलब CH4 की जगह CH3, तो अल्केन देखो, एन हटाओ, एक हाइड्रोजन कम किया, अल्क आइल लगाओ, एन के बदले आइल, या इसको इल बोलते हैं, अल्किल और अल्काइल, एनी हाउ यू कैन प्रोनाउंस. तो मीथेन का हो गया मीथाइल, समझ में आया? या मिथिल, एनी हाउ यू कैन प्रोनाउंस. सो प्लीज रिमेंबर व्हाट इज दिस आर. सो आर मीन्स हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया एंड उसके बदले हमने फंक्शनल ग्रुप डाल दिया. जैसे कि यहाँ पे Cl आ गया, वो एक हाइड्रोजन जो कम हो गया उसके बदले क्या आ गया? Cl. दैट्स सिंपल. So R means alkyl group, ये याद रखो. I will do one thing, जैसे जैसे एक एक फंक्शनल ग्रुप में पढ़ाते जाऊंगी, I will give you number of examples to understand and remember easily. Okay, तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है R-X, राइट? यहाँ पे X मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी हो सकता है. ओके, वेट अ मिनट. Yeah, correct. Here condensed formula will also be same only. R-X. सिर्फ इसके लिए ऐसा है. अब जब ऐसा वाला डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड आएगा तो इसका हम कॉमन नेम क्या लिखेंगे? कॉमन नेम विल बी अल्किल हैलाइड.
अब स्टूडेंट्स X मतलब हैलो एंड हैलो मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. सो क्लोरीन का हो गया हैलाइड, दैट इज क्लोराइड. ब्रोमीन का हैलाइड हो गया ब्रोमाइड. आयोडीन का हैलाइड हो गया आयोडाइड. समझे? एंड इन आयुपैक नेम, दैट इज इन साइंटिफिक नेम, ये जो हैलाइड आगे था वो पीछे, मतलब जो सफिक्स में था वो प्रेफिक्स में आएगा. इट विल बी रिटन एज हैलो अल्कीन. लेट मी गिव यू एग्जांपल, समझ जाओ. फॉर एग्जांपल मीथेन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है इसमें. मीथेन, चलो वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन, चलो आ गया क्लोरीन. राइट, इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया CH3Cl. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब ये बॉन्ड्स दिखा के जो हम दिखाते हैं, कंडेंस्ड मतलब बिना बॉन्ड्स के जो लिखते हो. आर यू गेटिंग दैट? ओके. नाउ इसका कॉमन नेम, पहले क्या आएगा? अल्काइल, दैट इज 1 कार्बन मीन्स मिथ, आगे आइल लगा दो. करेक्ट. मिथाइल. हैलाइड, क्लोरीन का हैलाइड मतलब क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड. ये हो गया कॉमन नेम. अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे आयुपैक नेम में. आयुपैक में हैलो मीन्स, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, हैलाइड मीन्स क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. वैसे ही हैलो मीन्स क्लोरो, ब्रोमो एंड व्हाट स्टूडेंट्स? आयोडो. तो बोला क्या आएगा? पहले क्लोराइड का क्लोरो, प्रेफिक्स में आता है हैलोजन. राइट, साइंटिफिक नेम लिखते हो, कॉमन नेम लिखते हो कि सफिक्स में बाद में आता है हैलाइड ग्रुप. ओके, फंक्शनल ग्रुप बाद में आता है, लेकिन साइंटिफिक नेम लिखते होते हैं पहले आता है. नाउ क्लोरो एंड अल्केन, कार्बन कितने हैं? 1, डायरेक्टली मीथेन. समझे? यही अगर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आता तो इंस्टेड ऑफ मिथाइल क्लोराइड वी वुड राइट मिथाइल ब्रोमाइड. हियर वी वुड राइट ब्रोमो मीथेन. ओके, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल. चलो, थिंक अबाउट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. व्हाट इज दिस कंपाउंड? देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, बॉन्ड क्या है? नंबर ऑफ कार्बन आर 3. 3 मीन्स प्रो. एवरीवेयर सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम मीन्स एन. तो ये हो गया प्रोपेन. अब इसमें सपोज वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड, हो गया रिप्लेस. सपोज आयोडीन आ गया, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय आयोडीन. आयोडीन मीन्स हैलोजन ग्रुप. चलो इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखो. कंडेंस्ड मीन्स सब एक साथ. कितने कार्बन है? 3, C3. हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 7 एंड आयोडीन सबसे लास्ट में. समझे? बिना बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर मतलब कंडेंस्ड फॉर्मूला, विथ बॉन्ड मीन्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. नाउ सबसे पहले हम लिखेंगे कॉमन नेम. अल्काइल, दैट इज प्रोप, एन हटा के आइल लगाओ तो इट विल बिकम प्रोपाइल. हैलाइड मीन्स आयोडाइड. आयोडीन है तो आयोडाइड, प्रोपाइल आयोडाइड. साइंटिफिक नेम बोलो, चलो कम ऑन यू ट्राई. हैलो मतलब आयोडीन का हैलो मतलब आयोडो एंड अल्केन वैसे के वैसा कॉपी करना है, आयोडो प्रोपेन. समझे स्टूडेंट्स? ओके, इट इज दैट simple. So I hope you understood the very first functional group in which the hetero atom is halogen. Hetero मतलब हाइड्रोजन रिप्लेस करके जो एटम आ रहा है यहाँ पे वो है halogen. Okay. You can do one thing from the video only. ये वाला चार्ट कंप्लीट करते जाओ. Okay, now students, let us move on to the second functional group in which the hetero atom is oxygen.
एंड ऑक्सीजन यूज करके देर आर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 4 है सिर्फ सीबीएसई के लिए, और 2 है इसमें ईथर एंड ईस्टर स्टेट बोर्ड के लिए। तो आज मैं वही पढ़ाऊंगी जो मतलब वहां तक ही पढ़ाऊंगी जहां तक सीबीएसई के लिए। ईथर एंड ईस्टर जो ऑक्सीजन के अंडर ही आते हैं फंक्शनल ग्रुप, वो हम बाद में पढ़ेंगे। आई डोंट थिंक सो आगे के भी होंगे नहीं, जितने होंगे उतने आज कवर करते हैं। सो ऑक्सीजन एज अ हेटेरो एटम, द फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज अल्कोहल। अब उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है R डैश। स्टूडेंट्स यू नो व्हाई आई एम पुटिंग R। R मतलब अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो हो जाएगा अल्किल, और वो हाइड्रोजन की जगह कौन लेगा? अल्कोहल ग्रुप। व्हाट इज दैट? OH। कंडेंस्ड फॉर्मूला इज ROH डैश निकाल दिया है। अब इसका कॉमन नेम आएगा अल्काइल। R मीन्स अल्काइल, OH मीन्स अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल। आईयूपैक नेम आएगा इसका अल्केन, वैसे के वैसे लिखो। ओके, अल्काइल नेम लिखना, क्या लिखना है? अल्केन ही लिखना है। ई हटा के रिप्लेस द ई विथ अल्कोहल का ऑल। समझे? एग्जाम्पल देती हूँ। CH3OH। अभी देखो CH4 मीथेन था, उसका एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह OH डाल दिया, मैंने डायरेक्ट कंडेंस फॉर्मूला लिखा है। ओके, मिथ मीन्स मिथाइल अल्कोहल, डायरेक्टली लिखो मिथाइल अल्कोहल, ये हो गया कॉमन। और उसी को आईयूपैक नेम में कन्वर्ट करो। C मीन्स 1 कार्बन, दैट इज मिथ एन, ई हटा के ऑल, मिथेनॉल। So this is the compound methanol or methyl alcohol. Common name and IUPAC name. 1 minute. ये जो IUPAC नेम मैं यहाँ पे बता रही हूँ अभी भी कंप्लीट नहीं है, ये जो बिगिनिंग है, इट इज जस्ट द बिगिनिंग टू राइट IUPAC नेम। ये और डिटेल में इसमें थोड़े और एडिशन है, लेकिन पहला बेस अगर समझोगे तो ये आगे समझ पाओगे। ओके, दिस इज नॉट द फाइनल IUPAC नेम, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। ओके, समझने के लिए याद रखना है। वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव यू, जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई। देखो बहुत सिंपल है। पहले हम कॉमन नेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कॉमन। नंबर ऑफ कार्बन क्या है? 4। 4 मतलब ब्यूटेन, लेकिन कॉमन नेम में हम अल्काइल लिखते, तो ब्यूटेन का क्या लिखेंगे? ब्यूटाइल। करेक्ट, ब्यूटाइल, एंड उसके आगे OH मतलब अल्कोहल। स्टूडेंट्स हो गया कॉमन नेम। अब इसका हम आईयूपैक नेम करेंगे। आईयूपैक नेम में नंबर ऑफ कार्बन इज 4, डायरेक्टली उसका अल्केन वाला नाम लिखो, दैट इज ब्यूटेन। ई हटा के अल्कोहल का ऑल लगा दो, दैट इज ब्यूटेनॉल। सो इट इज ब्यूटिल अल्कोहल और ब्यूटेनॉल। अंडरस्टूड? बहुत सिंपल है। चार्ट लर्न होगा तो रादर लिख सकते हो किसका कॉमन नेम क्या है, किसका आईयूपैक नेम क्या है। ओके, so students, I hope you understood the first functional group with a heteroatom oxygen। मतलब इन सब में ऑक्सीजन कॉमन होगा। अब नेक्स्ट आई विल राइट, सी अब तक हमने ये फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप पढ़ा, ये सेकेंड अल्कोहल। सो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप में हेटेरोएटम है हैलोजेंस, सेकेंड फंक्शनल ग्रुप में हेटेरोएटम इज ऑक्सीजन, ROH डैश ROH। ओके, अब थर्ड इज aldehyde. Now I will write the structural formula of aldehyde. RC double bond OH। देखो यहाँ पे सिर्फ ROH था, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH है। ओके, मतलब C डबल बॉन्ड OH stands for aldehyde। अब यहाँ पे कंडेंस फॉर्मूला R डैश CHO,
CHO, बिना कुछ बॉन्ड वगैरह दिखा के डायरेक्ट एक साथ लिख दिया, कंडेंस्ड फॉर्मूला। चलो अब क्या लिखेंगे, कॉमन नेम। कॉमन नेम में R मतलब अल्किल और उसको अटैच्ड है CHO मतलब अल्डेहाइड। सेम इधर वैसे था, अल्किल अल्कोहल, देखो अल्किल अल्कोहल, राइट। अब इधर नाउ वी विल राइट डाउन इट्स IUPAC नेम। डायरेक्ट अल्केन, अल्किल का अल्केन वाला फॉर्म लिखो, दैट इज मिथाइल का मीथेन लिख दो, ब्यूटाइल का ब्यूटेन लिख दो, कि तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अल्केन। यहाँ पे भी हमने वैसे किया था, अल्केन लिखा था और ई हटा के अल्कोहल का शॉर्ट फॉर्म दैट इज ऑल लगा दिया था। वैसे ही यहाँ पे ई हटा के अल्डेहाइड का शॉर्ट फॉर्म, एंड नहीं, डी नहीं लगाना है, स्टार्टिंग लगाना है, अल, दैट इज अल्केनल। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना ठीक से देखो मैं क्या बता रही हूँ, वो ठीक से ध्यान दो। CH बोलो ये कंपाउंड क्या है, मीथेन है, लेकिन हमको उसको फंक्शनल ग्रुप, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग द फंक्शनल ग्रुप अल्डेहाइड, राइट। तो हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, किससे, CHO डालो या C डबल बॉन्ड OH डालो, कुछ भी लिखो, इट इज वन एंड द सेम। चलो CHO ऐसे लिखा तो भी चलता है डायरेक्टली, या C डबल बॉन्ड OH ऐसे लिखा तो भी चलता है। नाउ स्टूडेंट्स पे अटेंशन केयरफुली। मीथेन में मतलब एक कार्बन में ये एक और ग्रुप ऐड हो गया, तो टोटल कार्बन कितने हो गए, 2। रिमेंबर इसमें हमको फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी काउंट करना है। सो ये ऑलरेडी अल्केन का कार्बन था, उसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी आ गया, तो अब कार्बन कितने हो गए, 2 मीन्स इथ, एंड हम उसको कॉमन नेम करते वक्त आइल लगाते हैं, दैट इज इथाइल, एंड CHO मतलब C डबल बॉन्ड H मीन्स अल्डेहाइड, इथाइल अल्डेहाइड, समझे। कुछ बच्चे गलती से सिर्फ हाँ ये कार्बन है इसमें ऐड हो गया तो ये हो गया मिथाइल अल्डेहाइड लिख देते हैं, नहीं, हमको यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी ऐड करके काउंट करना है। ओके, अब चलो हम इसका क्या लिखेंगे, करेक्ट IUPAC नेम। IUPAC नेम में जो भी अल्क है, इथ आया था हमारा, वैसे के वैसे लिखो, इथ एन, ई हटा के अल्डेहाइड का Al, दैट इज इथेनल, समझे। इट्स दैट इजी, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, स्टेप बाय स्टेप समझ के लो, इट्स वेरी इजी टू परफॉर्म, समझे। किसी भी कंपाउंड का तुमको कॉमन नेम पूछने दो या IUPAC नेम पूछने दो, बस ये टेबल लर्न है, इट विल बी इन योर पॉकेट, आंसर्स विल बी वेरी इजी। सो स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे खत्म नहीं होते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप। ऑक्सीजन में 4th है, अभी मैं सिर्फ नाम लिख रही हूँ, अल्कोहल अल्डेहाइड, नेक्स्ट इज कीटोन, नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, नेक्स्ट इज ईथर, एंड नेक्स्ट इज ईस्टर। मतलब हमको 1 2 3 4 और 4 फंक्शनल ग्रुप इन विच ऑक्सीजन इज देयर ऐसे पढ़ने, एंड इसके बाद सबसे लास्ट है अमाइन ग्रुप, दैट इज NH2 अमाइन, विच इज हैविंग, बट हियर लेट मी टेल यू वन थिंग, CBSE को सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड तक है। CBSE स्टूडेंट्स पे अटेंशन, यू हैव हैलोजन ग्रुप, यू हैव अल्कोहल, यू हैव अल्डेहाइड, यू हैव कीटोन एंड यू हैव कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो लास्ट के 3 है, ईथर, ईस्टर एंड अमाइन, दिस यू डोंट हैव। बट टुडे आई विल स्टॉप हियर। आज मैंने जितने ग्रुप पढ़े, आई टॉट टिल अल्डिहाइड। बेटर यू आर राइट डाउन दिस चार्ट इन योर बुक, एंड वो पेज खाली रखो, जैसे जैसे हम अगला अगला करते जाएंगे वो टेबल में हमको ऐड करना है, ये सब ऐड करते जाना है। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो 2 times, not only single time. Understand the concept, write it down in a notebook and practice on your own. कोई भी एग्जाम्पल लो, हेक्सेन लो, उसका एक हाइड्रोजन निकालो, उसके बदले ये चारों डाल के देखो, उसके नाम क्या क्या आएंगे, कॉमन नेम क्या आएगा, IUPAC नाम क्या आएगा,
खुद प्रैक्टिस करो। ये टॉपिक ऐसा है जब तक तुम खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे यू कैन अटेम्प्ट इट। ओके, थैंक यू।